IFFE study group of acquaintances and fellowship. It was formed with a view to share ideas, opinions, and ultimate goal was to have a value addition for all our professional members. On Saturday, we had a discussion on introduction of new TDS rules under section 194, 194 Q 206 AB and others. We had first edition on Saturday. Our speaker was CA Pinky Kedia, moderator was CA Vandana Dotia. It was a great session. I mean, looking at the feedback which we have received, thanks to Pinky and Vandana once again. Now I invite Judy Shah to give a brief and formal introduction of CA Pinky and CA Vandana. Over to you, Julie. Thanks, Kritika. Am I audible clearly? Hello? Yes, Julie, we can hear you. Yes, very much. Great. Okay, fine. See, it's my great pleasure to again introduce my friend Pinky and Vandana, both. So, I will start with Pinky's introduction. CA Pinky Kedia is a fellow chartered accountant and a qualified visa LLP and independent director also. She is a senior partner in Messrs. Kedia Singhania and Company. She is also well conversant with the latest developments in the field of taxation, company law and auditing, and has many reputed companies in her client list. Before becoming partner, CA Pinky had worked with Messrs. Dokania and Dokania in Kolkata, handling many listed companies audits, as well as she had also worked with Messrs. Sunil Chopra and Company in Mumbai, where she had handled bank audit, statutory audit and tax audit of different clients. Pinky adding the crown in her adding a jewel in her crown. She was the convener of JB Nagar Study Circle in 2015-16, the largest study circle of WRC, and also the convener of its women wing during her tenure as a convener of JB Nagar Study Circle. JB Nagar Study Circle has won the Best CP Study Circle and special recognition for the Best Concept Paper Award during her tenure as a convener. She is a regular speaker in various study circles and WRC. She has delivered lectures on digital media at Diamond Hub Association BKC. Pinky is a member of Women Empowerment Committee of WRC for the years 2016-17, 17-18 and 2021. She is a member of Study Circle Coordination Committee of WRC for the year 18-19. She is also a member of CPA Coordination Committee of WRC for the year 19-20. Her other interest is a great and cherishable for the society. She is involved in several social and cultural activities and has initiated Swachh Bharat Jagrukta Abhiyan. She has also initiated the project Rahe Hum Savdhan, a workshop to teach kids to protect themselves from sexual abuse. She has organized more than 50 workshops in different schools for underprivileged children across Mumbai, Thane, Kalyan, Dombivli, Diva, Wada and Sapale. Till date, more than 10,000 kids and parents have benefited. Amazing, Pinky. That's a wonderful job you have done. Further, she has been instrumental in installing more than 25 little bins in different parts of Mumbai under Swachh Bharat initiative by WRC during her tenure as a convener of study circle. She is regularly giving lecture on Swachh Bharat and Good Touch, Bad Touch, which was live webcast in all BMC schools of Mumbai region through Virtual Training Center, VTC. Her present designations: she is the president of Women Wing of International Vaishya Federation, Mumbai region for 3 years. She is the advisory committee member of Women Wing of International Vaishya Federation, Mumbai region. She is a treasurer of Agrawal Welfare Foundation for 2 years, and she is a president of Lions Club of Mumbai Game Changers. With this short and brief introduction, I welcome Pinky. Thank you. Thank you. Thank you for such a nice introduction, Julie. Pinky, what's wrong with your voice? You are not able to hear? पिंकी का वॉइस आया? Yeah, now it's clear. Yeah. Now it's clear ना? मैं दूर थोड़ी चली गई थी इसीलिए.
Yeah. Thank you, Julie. Thank you, Julie, for your nice introduction. Again, Yes. because One, it's a पिंकी, part two of और एक our तो बातें आपके बारे में बतानी है. Give me just 1 minute. yeah. Uh, Sure. Respected members, this is her second continuous Chai Pe Charcha episode because we have to arrange this on an immediate basis because of the great second round, what we call it is, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, once more round announced by the members, and here is the once more round from the Pinky. Okay, so thank you, Pinky, for coming up here and addressing us. Thank you for inviting me again. Shall I take up Vanna's introduction now? Yes, sure. लेकिन वंदना का ब्रीफ में बोलना हाँ, यार, 15 मिनट तक चलता है. इसका इतना ज्यादा अचीवमेंट है कि खत्म ही नहीं होते. वंदना मैडम की इतनी सारी अचीवमेंट्स है तो अभी ब्रीफ में कैसे करें मैडम, वो भी एक क्वेश्चन है. Okay, I'll try my best. Vanna is a qualified CA in the year 1998. Her other qualifications, she's an independent director. She has done qualification in forensic audit and fraud detection. She has completed her DISA. She is a commerce graduate and LLB general from KC College of Mumbai. She has all-round experience of working of 34 years in accounts, audit and indirect taxation. And the best is she's a specialized in tele implementation and customization. We can say that she's a tele evangelist and we can also say that she's a motivational speaker. Her past 12 years in last span of 12 years, she has served the CA profession as a co-opted woman and subgroup members of various committee of WRC of ICAI. Named few such as Women Empower Command Committee, GMCS, Cooperative Societies, Study Circle, Research and Publication, Career Counseling, etc., etc. Presently, she is a subgroup member of Management Accounting Committee of WRC for the year 2021, where she is actively coordinated for the e-publication of book on virtual CFO services. Well done, Vanna. She is committee member of Coaching Classes Committee of Goods and Service Tax Practitioners Association of Maharashtra, GST Farm, for the year 2021. Advisory group of member of Borivali CP Study Circle of WRC of ICAI. And she has also started Borivali Women Wing, a networking platform for women CA with support of BCSC. She is a life member of All India Federation of Tax Practitioners, Bombay Chartered Accountancy Societies, Chamber of Tax Consultants, Goods and Service Tax Practitioners Association of Maharashtra, Jain Chartered Accountant Federations, the Malad Chamber of Tax Consultants. She has addressed 100+ study circle meeting and workshops of WRC and various tax trade organizations on use of tele software as a tool, audit tool, statutory implementation of GST, TDS features in tele. बेसिकली सारे सीए को वंदना ने टैली सिखा दिया है कि आप टैली ही यूज करो और टैली ही यूज करो. फिर एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड वेरियस सेमिनार्स एंड लेक्चर्स मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAI. Her social contributions, she is a motivational speaker and her journey of becoming CA have been published in book Swing, Stories of Women CA Inspiring the New Generation, published on Women International Day in the year 2020. Her interview is featured in online magazine Insight Success under Woman Entrepreneur 2020 section in the month of January 2020. Recently, Recently, she was invited by Soapbox Talks to speak Success versus Happiness, and she a role model by the Forum of Indian Professionals. Singing being her passion, and she has founded International Fellowship of Rotarian Musicians, chapter in D3141 in the year 2017. Her recent compliments to her passion is she has participated in CA Day, 1st July 2021, and in the past, she has served as a treasurer in Bombay Borivali Junior Chambers of the year 1991. In the past, she has served as a committee member of Harmony Music Club
and she has served as a committee member of HBO Students Association in the year 1986. With this brief introduction, I will welcome moderate Vandana ji to come and अरे इसको ब्रीफ बोलेंगे तो किसको डिटेल बोलेंगे बेटा? अरे अभी तो बहुत सारे फेदर्स डालने हैं ना पंखे में. There is one more now amendment is that now I am vice president in Rotary Club of Borivali for the year 21-22 and treasurer for IFRF. तो वो तो चलते रहेगा. Note coming now between participants. I will ask you the first question was yes. The last session we will just brief ourselves. We had concluded that it is always from the turnover point of view. So once you process 10 crores in the previous year, again the repeating. Previous year 10 crores, not current year, right? Pinky, I'm asking you a question. So whenever you want to see the eligibility, you have to see the turnover of last year, correct? If you can, 10 crore हुआ तो लेना है क्या? If you can allow me, I will share my PPT in that all the brief is there. So एक ही screen में we can brief all the thing we had done last in our last session. आप देखो अभी आपको शेयर स्क्रीन मिल रहा है? Yes. तो थोड़ा सा हम 4-5 मिनट 2-4 मिनट लास्ट को ब्रश अप करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे. That was my idea. Yes. That 10 crore turnover, the first thing came in my mind is in previous year you should have 10 crore और current में भी 3 महीने में मेरा हो गया है. Up to 30th June 10 crore हो गया है. So am I supposed to start that section is attracted? That is first question now. Today is my first question. Yes, see in my PPT it also been written that for section 194Q it is effected from 1st July 2021. And when a buyer is and who is the buyer is responsible for making any payment to a resident seller. मैंने जानबूझ के I had highlighted bold this thing that it is resident seller. So non-resident not applicable हो जाएगा. Yes. So यदि आपने import किया है, in that case it will not be applicable because किसी की तो आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा. सबको म्यूट कर दो. अभी भी आ रहा है आवाज? अभी बंद हो गया. Okay. So in case of if you are buying from any resident seller on purchase of goods, it's written for goods, not for services. So don't confuse about services. It is only for goods. And the TDS rate will be 0.1%, and if PAN or Aadhaar is not available, it will be 0.1%. And aggregate value of purchase should exceed 50 lakh in the current year. Means 1st April से अभी तक आपका 50 लाख हो गया होगा, या जब भी 50 lakhs if you will cross, then it will be applicable. And the buyer has total sale or gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore during the financial year immediate preceding the financial. Means अभी यदि हम लोग इस साल का देखें तो financial year 2021 में if it has been crossed 10 crore, then first हमें वही criteria देखना है. सबसे first criteria we have to see that if in immediate financial year it has been crossed 10 crore or not. यदि 10 करोड़ से क्रॉस हुआ है, then we will see that 50 लाख इस साल का क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है. या हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जैसे हमारा इस साल का 50 लाख किसी से भी क्रॉस हो रहा है, then we can go to कि भाई पिछले साल 10 करोड़ हुआ था क्या इसका टर्नओवर. दोनों में से कोई भी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो क्राइटेरिया पहले चेक कर सकते हो, बट बोथ द क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड. And for central government, state government, local authority and other person, उसके लिए ये exempt किया है. 194Q is not applicable to them. Okay. Now we will come to our second slide. Not applicable in the following case कि यदि ये एक exception class एक और दिया हुआ है कि if tax is deducted under any other provision of this act. If TDS has been deducted in any another provision means 194O में कटा हुआ है, यदि
e-commerce operator ka, then this 194Q will not be applicable. And tax is collectible under the provision of section 206C other than a transaction to which section 206C 1H apply. अभी इसमें क्या बोल रहा था कि TCS भी यदि उसमें 206C में कोई TCS भी यदि कलेक्ट किया हुआ है, then in that case also 194Q is not applicable. But earlier यदि TCS 206C 1H में कटा हुआ होता था तो उसको नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि TCS यदि 206C 1H में कटा हुआ है then also 194Q is applicable. But circular number 13 came on 30 June. In that they had prescribed कि 206C 1H कटा हुआ होगा in certain cases, then 194Q will not be applicable. So ये एक थोड़ा सा confusion उन्होंने create किया कि same transaction पे कैसे ये चीज हम clear करेंगे. And the seller covered by section 206C 1H would collect 0.1%, and buyer also will collect 0.1%, but date with effective date is different. If on a transaction TCS required under section 206C 1H जो मैंने अभी बताया, then in respect of that transaction only TDS under section 194Q shall only be carried out. तो ये एक इन लोगों ने clarification देने की कोशिश की, but they had not clarified it कि कौन से केस में हम 206C 1H में कटा हुआ हो तो हमारी 194Q की लाइबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है, अभी 206C 1H भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है. Because 194Q is TDS on purchase of good and 206C 1H is TCS on sale of goods. तो सेम ट्रांजेक्शन पे सेल और परचेज दोनों है तो दोनों एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. फॉर दैट फर्स्ट वी शुड ब्रश अप फॉर व्हाट इज 206C 1H. So 206C 1H, who is seller and who receive any amount from a buyer on sale of good. ठीक है, तो ये सेलर के लिए एप्लीकेबल है. रेट इज 0.1%, पेन नहीं होने से 1% आएगा. इस केस में भी इफ सेल्स कंसिडरेशन इट्स सेल्स कंसिडरेशन, ओके, दिस मींस कि रिसीट ये सेल के ऊपर नहीं होता है. टीसीएस हमेशा सेल के ऊपर नहीं होता, हमेशा वो टीसीएस रिसीट के ऊपर रहता है. ये हमेशा आप ध्यान रखो. इंक्लूडिंग एडवांस रिसीट फॉर सेल एक्सीड ₹50 lakhs and 10 crore if his turnover is more than 10 crore. Here turnover means gross receipt or turnover for last year, then it is applicable. And buyer does not include sender, central government, state government, local government. तो उनके लिए भी ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है यदि बायर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो. ओके, ये मैंने लास्ट ईयर वी हैड डिस्कस. यस, वन मोर पॉइंट, जस्ट गो टू द प्रीवियस स्लाइड. See, just now you said, but you have mentioned seller has total sales, gross receipt or turnover. So yes, either or one of them should be 10 crores, correct? Yes, yes. Because आपने बोला sales नहीं देखना है. So I'm just trying to. नहीं, इसमें टर्नओवर, यस, टर्नओवर में क्या आएगा कि यदि आपका क्या होता है 8 करोड़ टर्नओवर है प्रॉफिट एंड लॉस में, but 10 करोड़ की रिसीट हुई है. So something is exceeding 10 crores, it will fall squarely fall. Yes, जो सेक्शन में अभी तक लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है. So you are trying अभी to इसके लिए हो सकता है इसके लिए आगे क्लियरिटी आए कि, बट अभी सेक्शन में यही है कि टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो भी 10 करोड़ से ऊपर होगा तो एप्लीकेबल. So either or. Yes, yes. नाउ कंपैरिजन साथ में दे दिया था कि किसके लिए क्या एप्लीकेबल है. बायर 194Q में बायर काटेगा, वो सब पूरी वही चीजें जो मैंने पिछली स्लाइड में है. इन दिस स्लाइड आई एम गिविंग साइड बाय साइड सो यू कैन कंपेयर. एंड लास्ट वन इज प्रेफरेंस. फर्स्ट किसका प्रेफरेंस है काटने का और सेकंड प्रेफरेंस किसका है. फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज इज फॉर टीडीएस बिकॉज टीसीएस इज ऑन रिसीट बेसिस. ओके, नाउ अगेन ये थोड़ी और कंपैरिजन था कि कब से एप्लीकेबल है. रिटर्न फाइल एंड टीडीएस सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड. नाउ लास्ट वन जो है कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट. बिकॉज ऑफ दैट ओनली प्रॉब्लम इज अराइजेस कि हमें 194Q लगाना है कि नहीं लगाना है यदि टीसीएस कटा हुआ है तो. क्योंकि अदरवाइज यदि आप 194Q की लाइबिलिटी है और आपने नहीं काटा तो इंटरेस्ट के अलावा यू डिसअलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 40A1 इज मोर वायबल. कि वो एक थोड़ा सा सबके पिंच होगा कि आपने सपोज यदि 10 करोड़ की परचेज की है एंड 10 करोड़ में आपका 30% मतलब 3 करोड़ की परचेज को आपको डिसअलाउ कर देगा. देन आपके प्रॉफिट में कितना इफेक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स का आपका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा.
So that's why they are more concerned कि 194Q will be applicable or not if 206C1H is already collected. Okay. तो लास्ट टाइम हमने ये टेबल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, पूरे 1 घंटा हमें इसी टेबल में निकल गए थे। तो इस टेबल को अभी मैं फिर से डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, नहीं तो ये 1 घंटा भी फिर इसमें निकल जाएगा। But it has clarified. Now I am thorough with this. So 2021 for financial year 2021 only 206C1H was applicable, but for 21-22 you have to see in each and every transaction whether 194Q will be applicable or 206C1H is applicable. Okay, so we had gone through by up to till this slide only last time. Okay, उसमें भी तो आपने अभी 10 इसके नंबर तक बताया था ना, 11-12 शायद बाकी था आपका। 11 और 12 शायद हम लोग ने 10 तक डिस्कस किया था। 10 was the last which we discussed at that day. No, 9 या 10 तक नहीं 7 तक 7 भी नहीं 6 तक हुआ था, 6 तक हुआ था। वो दोनों सेम है ऐसा? 6 भी नहीं, 3 तक ही चल रहा था मैडम। नहीं, किसी ने पूछा ना कि ये और ये दोनों सेम लग रहे हैं, क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? इफ यू रिमेम्बर ये 9 स्लाइड तक ही हुआ था। 10 हाँ, नंबर में अपना 26A भी आ जाता है। स्लाइड नंबर नहीं बोल रही हूँ, तेरा एग्जाम्पल नंबर 9 तक हुआ था ऐसा बोल रही हूँ। ओके, नहीं एग्जाम्पल नंबर नहीं, 10 पूरा हो गया था, फिर भी हम एक बार चाहिए तो 9 से ले लेते हैं। एग्जाम्पल 9 तक पहुंचे थे, 10 से आपको कराना था, बाकी था। वंदना, can I say something? बोल दे बेटा। अरे 12 तक हो गया, क्योंकि देख तेरे को 12 में पूछा था पिंकी ने, तो तूने बोला था कि 12 मेरा क्लियर, तूने जवाब भी दे दिया था। वी हैव डन एंटायर ऑल द हाँ, मतलब लोग जाग रहे हैं। चलो नेक्स्ट चाय पे चर्चा। That's it. चलो ठीक है। अभी मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करूं क्या, क्योंकि किसी ने तो एनोटेशन चालू कर दिया स्क्रीन पे। लाइन मार रहे हैं। सो अलाउ पार्टिसिपेंट एनोट को बंद करना पड़ेगा अपने को। नहीं, वो मैंने किया। स्टॉप करके फिर से कर। हाँ, वही मैं स्टॉप करके फिर से वो करती हूँ। क्योंकि अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था मालूम है कि व्हाट एडजस्टमेंट टू बी डन फॉर जीएसटी और वेदर टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल ऑन जीएसटी, मतलब बिल में जीएसटी लग के आया है। सो दैट आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू क्लैरिफाई एंड यू सेड कि जीएसटी के ऊपर तो टीडीएस नहीं काटना है, वो तो मतलब सर्विस टैक्स पे अपन नहीं काटते थे। दैट फाइनल आया था सर्कुलर उनका। तो सिमिलर सेम विल अप्लाई टू जीएसटी आल्सो। सपोज बिल में जीएसटी लग के आया है जीएसटी। हाँ, तो फॉर जीएसटी ना 194Q के हिसाब से अभी सिंपल सा फंडा है, हमें ये इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। वी हैव टू गो थ्रू बाय द लॉजिक इन बोथ द सेक्शन, देन वी कैन रिमाइंड एवरी टाइम कि 194Q किसके ऊपर है, परचेज के ऊपर है। ओके, अभी जब भी आप नॉर्मल दूसरे सेक्शन में भी जब आपके पास में आते हैं बिल, लाइक हम लोग हमारा जो प्रोफेशनल सर्विसेज का भी जो बिल देते हैं, इन दैट व्हाट वी आर डूइंग, we are deducting TDS on the base amount only, excluding GST. Correct. Okay, so in 194Q also we don't have to include GST, it will be exclude GST. तो ये TDS का ये फंडा सब जगह वही है कि GST you don't have to include, and this clarification has been given in circular number 13 dated 30 June 2021 also कि 194Q को excluding GST लेना है, but in case of 206C1H what you have to do, because it's on the receipt basis. So अभी आपने एडवांस दिया 1 लाख रुपए, उस 1 लाख में जीएसटी कितना होने वाला है यू डोंट नो। सो अभी जिसको भी वो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिस भी सेलर को, उसको उस 1 लाख के ऊपर पूरा टीसीएस काटना पड़ेगा, उसमें वो जीएसटी अमाउंट इंक्लूड कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, अंडरस्टूड। So if in a transaction if 206C1H is applicable, TCS will be on the full amount including GST, but in case of 194Q it will be excluded, it will be on the base amount. Okay, so I think it is clear for participant. चेक बॉक्स में डाल सकते हैं। अब पीपीटी हम कैसे शेयर करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन? यहीं पे डालेंगे पीपीटी या कैसे करेंगे? सबके नंबर्स नहीं होंगे हमारे पास, या वो लोग ईमेल एड्रेस डालें, हमारे ईमेल पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो वी कैन शेयर, नो? Yes.
तो हम लोग, मैं पीपीटी आई कैन शेयर, हाउ यू कैन से मी, हाउ कैन आई शेयर, बिकॉज ऐसे भी यदि चाहिए तो वो लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट्स नॉट वेरी मच No, थिंग इज I देयर will स्लाइड. put a file over here. नहीं, Gracie saying that I feel even under 26C 1H GST is to be excluded. No, because it has been written by CBDT via circular number 17 dated 29 September 2020. Okay, what is written in that circular? The no GST adjustment should be made for calculating TCS due to indirect taxes or discount, as tax is deducted on receipt of consideration and not the sale. Okay, so it is clearly written in CBDT circular number 17 dated 29 September 2020. You can go through by that, and it is included in the TCS amount. Okay, so Vandana, you can ask your further question, or I can clear for, you can ask question number 3 तक हो गया अपना. हम लोग ने वहाँ पे अभी the very moot question was that in case of purchase return, what adjustment to be done for TDS under section 194Q and TCS under section 206 for that matter? In case of purchase return, na? हाँ, purchase return, how you will deal? If purchase return can be done by in two way. क्या तो हम रिप्लेस करें गुड से या उसको मनी वापस करें, ठीक है. इफ दे हैड सेट ऑफ विथ सेलिंग विथ अदर गुड्स, कि वो परचेज रिटर्न हुआ उसने रिप्लेस कर दिया दूसरे गुड्स से, ओके, इन दैट केस नथिंग हैज टू बी डन, क्योंकि परचेज तो पूरी हो गई ना, खाली गुड्स रिप्लेस हुआ. बट इन केस ऑफ इफ अमाउंट हैज बीन रिटर्न टू द सेलर, so in that case amount has been written by the seller. In that case क्या होगा कि in circular number 13 they had clarified this, because ये पहले clarification नहीं था. In circular number 13 dated 30 June they had cleared this, कि if the what they had written, कि if the purchase return has been already been deducted and TDS has already been deducted under section 194Q on that, then the money is refunded by the seller. Then in this case this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller. Okay, and that can happen filing correction return ना, क्योंकि date will differ, amount may differ, everything will differ, so that correction statement need to be filed by SSC. Okay. Yes, तो यदि वैसा रहा तो वो अगले कोई भी अगले ट्रांजैक्शन में दे कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ TDS. One question. Yes. Is there any time limit for adjusting this purchase returns with the subsequent returns? I mean subsequent purchases. ऐसा कुछ है? No, they had not mentioned any time limit in their circular or even in their section also. They had not mentioned anything कि वो कोई time limit है. But TDS return has to be revised. Yeah, otherwise he will. Correction statement मैंने बोला ना, correction statement के. Otherwise he will get. Okay. अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे हो रहा है ना, जैसे आपको जो एक इससे थोड़ा सा अलग चैप्टर है वो मैं बताती हूँ, TDS का ही है, बट कि जैसे प्रॉपर्टी परचेज के केस में हो रहा है. अभी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, उसमें भी एडवांस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से आपने TDS काट दिया, TDS जमा करवा दिया, देन द ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसिल्ड. तो अभी तक भी वो 26 QB अल्टर करने का या कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है. तो फिर कैसे होता है? कुछ नहीं होता, आपस में झगड़े होते हैं. नहीं, बस वो तो मेरे को इसका ही पूछने का था. थैंक यू सो मच. ग्रेट, थैंक यू. ओके, तो आगे चले अपने ये परचेज रिटर्न. आई थिंक इट इज क्लियर. और अभी आपने सेक्शन पढ़ा के मेरा सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था, whether section 194Q applicable to non-resident. You have already clarified that the section specifically mentions resident. So I'll jump to the next question. In case seller has only exempt income, whether tax to be deducted under section 194Q. Yeah, this has been also made clarified by circular number 13 on 30th June only. ये भी पहले clarify नहीं था. Now they had clarified that if the buyer
in case of 194Q, if the seller, in case of 194Q, if the seller has only exempted income, then it is not to be TDS not to be deducted in case of 194Q. मतलब यदि उसकी थोड़ी भी यदि इनकम ऐसी है जो एग्जम्प्ट नहीं है, इवन उसको यदि बैंक इंटरेस्ट भी मिल रहा है जो एग्जम्प्ट नहीं है, ओके, देन ऑल्सो 194Q विल बी एप्लीकेबल. मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट इनकम ही है. तो ये किसी 50 लाख का सेल कर रहा है, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, व्हाट दे आर सेइंग कि लाइक उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द एक्ट, मैं सर्कुलर पढ़ के बता रही हूँ कि एग्जम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर द एक्ट लाइक पर्सन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 और अंडर एनी अदर एक्ट passed by the parliament like RBI Act, ADB Act, etc. तो ये जनरल पब्लिक को तो एप्लीकेबल होने वाला ही नहीं है. तो it like that only. In case of 206C1H also it is said that ki in case of if the buyer who is a person and having only exempt income, then 206C1H is not applicable. In all other cases it is applicable. So the so ये है कि एक part of the if the above is not applicable if only part of the income of the person being a seller or being a buyer is exempt. ठीक है, तो कोई एक पार्ट यदि एग्जेम्प्ट है तो ये एप्लीकेबल होगा ही. The next question comes that if I start the business in the current year, so it is the first year, so that was my simple question was that कि 1st April से 30 जून तक का अगर मेरा 10 करोड़ हो गया, there is no previous year existing, और previous year में भी मेरा कम था, 10 करोड़ से नीचे था. तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन है. लास्ट ईयर मेरा 10 करोड़ से नीचे था, अब इस साल भले ना 10 करोड़ होता है तो 194Q शुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. अच्छा, मैंने बिजनेस ही यही साल में स्टार्ट किया है तो फिर 194Q एप्लीकेबल होगा क्या? नो, because the condition is turnover should be exceeding 10 crore in the previous financial year. तो यदि प्रीवियस फाइनेंशियल में आपका था ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन, देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. Okay, so now we have to move on to 206AA. So anything your 10 number slide is going to showcase what we are on the same page. Okay, then fine. Yes. So can you bring section 206AA, the definition, relevance of specified person under that section, you know? Yes, yes. So in that case सबसे पहले तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है. ओके, क्योंकि जब आप टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, कितने रेट पे काटना है, और एंड दिस इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव सेक्शन. देखने के लिए इतना छोटा सा लग रहा है बट इम्प्लीकेशन इज वेरी टफ. ओके, आप जब टीडीएस टैक्स ऑडिट भी करोगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी देखने के लिए. अदरवाइज हम 194J का है, प्रोफेशनल फीस 10% काट लिया कि नहीं काट लिया उतना देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है तो 2% काट लिया कि नहीं वो देखते हैं. बट when this section is applicable, you have to check whether that the person to whom you are paying it come under specified person or not. ठीक है, तो specified person की definition जो लिखी हुई है section में, specified person means a person who has not filed the return of income for both of the two assessment year relevant to the previous relevant to the immediately prior to the previous year. मतलब क्या है कि यदि आपने जैसे अभी जो देख रहे हो अपने लोग इस साल का जो काटेंगे 2021-22, so he should be filed, मतलब both either of the, मतलब इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. इसमें बोला जा रहा है कि टू असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर. तो लोगों को क्या लग रहा है कि दोनों साल की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, बट दोनों साल में कोई एक साल की भी रिटर्न फाइल हुई ना, देन ऑल्सो ये 206A एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, तो इसका मैं आगे एक टेबल से बिकॉज ऑल दी डिक्लेरेशंस आर न्यू इंडिया के जो भी एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस के जो भी एजेंट है, तो कंपनियां यही मांग रही है, प्लीज गिव अस द डिक्लेरेशन के लास्ट 2 असेसमेंट ईयर, लाइक 20 दे आर आस्किंग फॉर 9 असेसमेंट ईयर 1920 2021 बिकॉज 21-22 येट ओपन ही नहीं हुआ है ना कुछ असेसमेंट ईयर.
they are taking declaration for suspended year 1920 and 2021. Even my Yes. another person who deducts my TDS also has approached me with the statement. So corporates are also approaching the last 2 years. का Yeah. अपना So I will show you. If I will get time, I will show you how they can check themselves by their login on the website. Yeah. Why I have to give declaration? Okay. Why I will give my 26 AB 20 and ITR to them? Why I will show my how much I have income? क्यों मैं दिखाऊं ना किसी को कि how much income I have? तो ये they can That's what they are asking. Correct. That's what I said. They are asking for Yes. ITR-V as well as acknowledgement to substantiate your claim. Because खाली declaration लिख दिया तो उनके पास कोई support नहीं है ना. How do I verify? No. They can. मैं आपको दिखाती हूँ. यदि आप बोलोगे तो मैं अभी दिखा देती हूँ कि कैसे वो लोग they can check themselves. उसमें bulk pen check करने का और single pen check करने की भी एक facility दी हुई है even. But nobody. It's a part of our discussion only and very important. So they can show that. Okay. So एक second. I have to go to. आपको मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है क्या? नहीं, हमें TDS न्यूज़ सेक्शन दिख रहा है. हाँ? आपका जो स्लाइड पीपीटी है ना वही दिख रहा है. मतलब पीपीटी जो ओरिजिनल पीपीटी है वो दिख रहा है. ओके, तो मैं एक बार स्टॉप शेयर करके फिर से मैं शेयरिंग करती हूँ. ठीक है? चलेगा. नो इश्यूज. ओके. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा. इन स्पाइट ऑफ दिस पीपीटी ओनली. अभी दिख रही है? गूगल दिख रहा है कि अभी भी पीपीटी दिख रही है? गूगल दिख रहा है. गूगल दिख रहा है ना. तो अभी मैं आप लोगों को एक वो दिखाती हूँ कि कंप्लायंस चेक का ना इन लोगों ने एक पूरा ये एक भेजा हुआ है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने. ये पेज जो है वो 11 पेज का पूरा रेफरेंस मैनुअल गाइडेंस है. हाँ, तो ये फाइल आप जूम के चैट में फाइल्स शेयर में डाल सकते हो. आफ्टर यू शो अस एंड देन यू पुट इट देयर. Okay. So इसमें क्या, in this guidance they had given all these things very clearly step by step. If anybody will go through by this ना, they can easily find out कि कैसे आपको चेक करना है. तो सबसे मैंने थोड़े बहुत इसमें क्या, यदि मैं सारा दिखाने जाऊंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बाद में मेल में OTP आता है, पासवर्ड आता है. तो जितना प्रोसेस इसमें मैं ऐसे बता सकती हूँ बताती हूँ, उसके बाद में वो वहां पर जाके कैसे चेक करना है ना, वो फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है? तो आप ये दिस इज द रिपोर्टिंग पोर्टल. ओके, URL इज report.inside.gov.in. ओके, वो कैसे जा सकते हैं, वो हम जब इनकम टैक्स की साइट पे जाते हैं ना, हमको लॉगिन करना होगा. ये सबसे पहले आपको अपना टैन नंबर रजिस्टर करना होता है. ओके, कितना स्लो चल रहा है. 10 नंबर. बट 10 क्यों होगा? सबके पास होता है ना, यदि आपकी TDS की लायबिलिटी आ रही है, आपने 10 लिया हुआ होगा ना. हम देखो, देयर आर 2 मिथ्स. कंफ्यूजन ये हो रहा है. अच्छा, तो जो बंदा देखना चाहता है वो जो TDS काट रहा है, तो आप उसके 10 की बात कर रहे हो. ओके. हाँ. अभी जैसे लोग मांग रहे हैं ना. अच्छा, समझ गए. जैसे लोग मांग रहे हैं, मैं बोल रही हूँ यदि बैंक वाले भी मांग रहे हैं, बैंक वाले क्यों मांग रहे हैं? दे कैन चेक देमसेल्फ ना. हाँ, ओके. अरे बाबा, कळलं नंतर कळलं, थोड़ा रुक के समझ में आता है. मेरे दिमाग में वही था, मैं खुद जाके देख सकती हूँ. अरे भाई, मैं नहीं, जिसको एप्लीकेबल है. तो ऑब्वियसली आई कट TDS फ्रॉम माय प्रोफेशनल फीस. तो मेरा ऑलरेडी 10 अभी जैसे है. यस, अभी मैंने यहाँ पर एक 10 नंबर. उसी को ये एप्लीकेबल है ना 20688 का दिमाग लगाने का, तो उसको है ना बेसिकली. हाँ, जिसको TDS की एप्लीकेबल, जिसको भी TDS एप्लीकेबल है उसी को 206H है ना. तो यदि उसको TDS एप्लीकेबल है तो 10 नंबर होगा ही उसके पास में. So he has to register their 10 number on the income tax portal. मैंने ये इनकम टैक्स पोर्टल पे ये 10 नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है. सो मैं उसी के थ्रू जा रही हूँ अभी. वेरी गुड.
क्योंकि कैसे रजिस्टर करना है वो मैं बताने जाऊंगी ना, बहुत टाइम लगेगा अरे मतलब हम हर दिन एक सेशन रखना पड़ेगा चाय पे चर्चा, चलो एक्चुअली। क्योंकि उसमें वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें डिटेल वगैरह काफी चाहिए। तो अभी ये मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है, मैंने हाँ। खुद की फर्म का ही किया है। अच्छा ये अच्छी बता बात रही है हूँ। ना, पता तो चले। अभी इसमें पेंडिंग एक्शन में यू हैव टू गो टू रिपोर्टिंग पोर्टल, अच्छा दे दिया पेंडिंग एक्शन में, ओके। ठीक है। तो रिपोर्टिंग पोर्टल में जब आप जाते हो ना, तो ये आपको ये मैसेज देता है कि ऑन क्लिक ऑफ प्रोसीड यू विल रीडायरेक्ट टू रिपोर्टिंग पोर्टल। आपने ये किया, अभी यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना होता है। इफ यू विल गो बाय न्यू रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर ये ऐसा मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ठीक है। यदि मैं किसी दूसरे का ले सकती हूँ, आप बोलोगे तो मैं दूसरे का एक का लेती हूँ, जिनका नहीं किया हुआ तो उसके में क्या मैसेज आता है वो भी हम देख सकते हैं। हाँ बढ़िया है ना, हम जैसे नए का करोगे तो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं तो सोच रही थी मैं खुद ही यहाँ पे चालू करके खुद का भी रजिस्टर कर लूँ साथ साथ में। अभी ठीक है, मैं कैसे वो, यदि नहीं रजिस्टर्ड किया हुआ हो तो क्या मैसेज आता है वो मैं आई विल शो यू लेटर ऑन, बट फर्स्ट आई विल शो यू कि हाउ टू चेक। आई हैड रजिस्टर्ड माई सेल्फ। कर लेंगे, see 10 we will register, we all are qualified, we will do Yes. it. But ओके, सो मैंने रजिस्टर्ड कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया। नाउ आई व्हेन आई एम गोइंग टू दिस न्यू रजिस्ट्रेशन, दे विल से कि आपको करना क्या है। ओके, जहां पर हम फॉर्म 61 फाइल करते थे है ना, जब ये एसएफटी वगैरह का, हाँ, उसी में देखिए ये कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, दिस मेनू इज देयर। ओके, नाउ ही विल आस्क कि आपको मेरी फर्म है इसीलिए ब्रांच ऑफ फर्म करके आ गया है कैटेगरी। नाउ आई हैव टू गो टू नेक्स्ट। ये कभी पूछता है जब हमें रजिस्टर्ड करना होता है। ओके, मैं जानबूझ के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप यहाँ आके कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे होगा। ये अभी आप समझ लो कि यहाँ मैंने जब रजिस्टर्ड किया ना, रजिस्टर्ड मुझे मेरा आईडी करना है। मैं अभी इससे बाहर निकलती हूँ, एक सेकेंड लॉग आउट करती हूँ। मैं दूसरे का लेती हूँ जिसका रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, पासवर्ड यहाँ याद पे रख कॉपी के पेस्ट आना नहीं होता है। हाँ, पासवर्ड याद रख के आना कॉपी पेस्ट नहीं, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे जब मैं रिपोर्टिंग पोर्टल में जाती हूँ ना, प्रोसीड न्यू रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू, ठीक है। देखो इसमें भी मैसेज नहीं आ रहा कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके, मैसेज नहीं आ रहा। कंपनी है ऑलरेडी आ गया। नेक्स्ट जाते हैं ना तो देखो ऐसे आता है, पूरा यू हैव टू इंटर एंटिटी नेम। जैसे हम यहाँ एंटिटी का नेम डालेंगे ना, एड प्रिंसिपल ऑफिसर, ओके, बिना भरे भी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है। देखा मैंने, तूने क्लिक किया, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि अब ये इसमें क्या होगा ना, जब ये इफ यू विल गिव द डिटेल ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, लेकिन वो भरना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो बिना भरे आपका सबमिट हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू फिल दैट साइड आल्सो। प्रिंसिपल ऑफिसर दे शुड हैव डन इंटीग्रेशन। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि मेरा 10 नंबर कहाँ से आया, एनएसडीएल से आया। एनएसडीएल एंड आईटी इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, व्हाई अगेन आई एम आस्क्ड टू फिल दिस अप? That question you have to ask Sitaraman only, our honorable finance minister. Just sheer waste of time. So 10 is given only based on pen, right? You can't get 10 without pen. They want, see, this is one type of KYC they are doing. अच्छा, फिर से डेटा को करेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। Yes. Okay, you do. I don't mind. So once you have my these details, they should have written a program backside. Yeah, when you put this details, your principal officer will become this. As simple as that. तो नहीं, क्योंकि क्या है भाई, बहुत लोगों के में ना साइट पे अभी भी बहुत जब उन लोगों ने साइट पे रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय जो डिटेल डाली थी ना, अभी तक वही डिटेल चल रही है। हाँ, वो चेंज नहीं हुई है, मैंने देखा। हाँ, काफी मेरे तो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग दिस कि आपको। तो अभी इसमें जो आप प्रिंसिपल ऑफिसर का जो डालोगे ना डिटेल, उसके आईडी से आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। आई कैन बी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ 10-20 ऑर्गेनाइजेशन। अरे पिंकी, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई थॉट प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं। अरे कौन ऑथराइज्ड पर्सन लिखना भाई, मैं कंफ्यूज। yes, principal officer means authorized person, it's not a IT person. It's I me was thinking for of IT, इसीलिए मैं बोला बैक एंड no okay कंफ्यूजिंग इट इज यार। no it's not a principal officer. अभी हम तो प्रिंसिपल ऑफिसर मतलब ऑन इनकम टैक्स ऑफिसर इज ऑफिसर। I got it like this, you know.
Yeah, I got it. चलो But let's go. but So, here हमारे देखो प्रिंसिपल की डाउट क्लैरिफाई हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफिसर डजंट मीन आईटी ऑफिसर, इट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू साइन द टीडीएस रिटर्न और गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक. Yes. Yes. So it is your in-house person only. Okay. Basically कि That is जिसको okay. टीडीएस काटना है या जिसको ये कंप्लायंस करने हैं, that per you have to give the detail of that person. And तो ये जब उसकी आप डिटेल देते हो ना, तो जब इसमें पैन नंबर और ईमेल आईडी देते हो ना, then one OTP will come to that email ID and पैन नंबर, जैसे हम पहले करते थे. हाँ. सो जैसे ही सबमिट करोगे आपको उसके पास चला जाता है. देन यू गो बाय दैट लिंक. वो सब जो पहले के प्रोसेस है, लिंक पे जाके ओटीपी डालना है, वो सब करना है. तो ये इस उस ऑर्गेनाइजेशन का 10 नंबर से इंटर करने का बस उतना ही वो है. अभी उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाओ. अभी आपको जो लॉगिन करना रहेगा ना, वो इनकम टैक्स की साइट पे नहीं करना है. आपको जो लॉगिन करना है ना, देखो इसमें जो लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली आपको इस साइट पे लॉगिन करना है. ओके. जब आप इस साइट पे लॉगिन करते हो ना, तो ये आता है मैसेज. यहाँ पे आपको करो, आप आपका करो. अभी आप यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड. नो अभी क्या हम लोग तो लॉगिन सुनो यहाँ पे जब आपको जो ईमेल में आएगा ना, वो लॉगिन पासवर्ड दोनों आएगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन उस पासवर्ड को डालना है फर्स्ट. एंड जैसे हमेशा होता है कि फर्स्ट पासवर्ड आपको चेंज करना है, वैसे आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा. यस. एंड पैन नंबर इज ऑलवेज बी यूजर आईडी विल बी ऑलवेज योर पैन नंबर. ठीक है. जैसे मैंने मेरी फॉर्म का किया हुआ है, तो मैंने मुझे ही किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफिसर. तो मैंने मेरा पैन नंबर डाला. पासवर्ड मुझे पूछा, पासवर्ड भी मैंने डाला. ओके. नाउ ये लॉगिन हो गया. ठीक है. नाउ ये देखो कंप्लायंस चेक करके ओनली वन ऑप्शन इज देयर. हाँ, करेक्ट. एंड इन सेलेक्टेड ITADR मुझे ये सिर्फ मेरा फॉर्म का पैन नंबर दिखा रहा है, क्योंकि बिकॉज राइट नाउ आई एम रजिस्टर्ड ओनली ऑन दैट 10 नंबर. If I am principal officer of 10 or 20 or 15, how much organization, all the list will come here. Okay. कि मेरे को किस 10 नंबर के लिए मुझे चेक करना है. ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, प्रोसीड. सेलेक्ट ऑथराइज पर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रोसीड. अगेन वो किस लिए पूछता है पता नहीं, क्वेश्चन मत करना उसके लिए. So funny. Now you have to go by compliance check for section 206 AB. ये आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है मैडम. ठीक है. अभी आप तेरा पैन नंबर बोल, या किसी का भी पैन नंबर बोल. ABZPD ABZPD C. अरे पर्सनल एंड दोड़िया. PD दोड़िया 3865C. C. करेक्ट. हाँ. अभी मैंने यहाँ पे इसको लाइव देखना है तो यही करना पड़ेगा ना पिंकी. देख क्या लिखा है, आ गया ये. लिंक है और पैन अलॉटमेंट लिखा है. स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन. स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, तो मतलब उन्होंने तूने किया है. क्या हुआ है. ठीक है. अभी स्पेसिफाइड पर्सन तू नहीं है, दैट्स वाई कि उनको तुझे 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर हायर डिडक्शन. अभी वैसे ही जब हम जाते, जो बैंक वालों के लिए या जिनके पास ज्यादा डिडक्शन है, तो वो बल्क इधर देख. अभी इधर वाला पहले बता देते, फिर यहाँ से हम आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हो. यस. ओके. नाउ ओपन. सी उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है. ये देखो. Fantastic, phenomenal. Why they are asking for declaration then? That's why I am asking why they are asking for declaration. You can get here from here na that it is not specified person for this section. And नीचे देखो ये पूरा आ जाता है कि किसने निकाला है, कभी निकाला है, कौन से टाइम पे निकाला है, पूरा आ जाता है, और किस 10 नंबर के लिए निकाला है. So that makes it valid, no? बहुत पुराने टाइम का है कि करंट डेट का है, पता नहीं. हाँ. Yeah. So that's why I'm asking. Everybody is asking me कि मैडम ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट सही है क्या. They are asking us, मैडम 26 AB निकाल के दे दो, ITR निकाल के दे दो. Why should I give my details to them? Correct.
ये गलत बात है, प्राइवेसी रहेगी। जब गवर्नमेंट ने इतना इजीली वो सब दे दिया है, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, व्हाई यू आर आस्किंग मी? करेक्ट। I am paying rent for my office. हेलो, हाँ नीला, हाँ बोलो। वंदना, मारे बोलो। केवू हुआ मा इसमें क्या होता है, अभी सब लोग जो दे रहे हैं ना, उतना आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर उतना नीचे का फिगर सब ब्लैकआउट करके दे रहे हैं। मतलब ऊपर का अरे खाली लेकिन वो भी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उतना भी नंबर। मैं क्यों दूं ना? हाँ नहीं, उसमें भी मेरी बात, एक्चुअली क्या, तो यू आर करेक्ट, आई अंडरस्टूड, दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, बट दे आर ये नॉट देखो, गिविंग अभी इट मैंने ऑल द फिगर्स। एक पेन इसमें, चलो ठीक है, 2-3 पेन का आपने ऐसे निकाल दिया, अदरवाइज दे हैड गिवन Yes. बल्क सर्च आल्सो ऑप्शन सी। यस यस, bulk search yes, that's is there. right. If you will see, if you will download CSV फाइल ना, तो उसमें क्या होता है, मैं दिखाती हूँ, उन लोगों ने जो आपको पीडीएफ दिया है ना, उसमें क्लियरली उन लोगों ने पिक्चर के साथ बताया है कि वो कैसे आएगा। ये इसको आप ढंग से देखोगे ना, कॉमन सेंस ना, वो टेम्पलेट देगा सीएसवी का, उसमें आपको सबके पैन नंबर एक साथ में डालने होंगे, फिर वो एक साथ अपलोड हो जाएंगे। देखो इसमें मैंने जो बताया ना कि जब ये आपके, इफ यू आर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन, more than one 10 number, तो ऐसे वो लिस्ट आ जाएगी। You have to select for which 10 number you want to check, and if you will go to bulk search ना, then bulk search में देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सेल फाइल देखो, ऐसे आपको सिर्फ पेन नंबर डालना है। हाँ, सिंपल लॉजिकल। The current limit of pen is one file is 10,000. 10,000 pen you can search in one file. अमेजिंग। इतनी फैसिलिटी दी है इन लोगों ने, इनकम टैक्स वालों ने, उसके बावजूद दे आर आस्किंग अस टू गिव द डिक्लेरेशन। काम खुद को करना पड़े ना। यस, तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि ये सीएसवी फाइल इसकी जो आप डाउनलोड करोगे, उसमें ये डाल के आप उसको अपलोड करो, तो वो सारी डिटेल ऐसे देखो आ जाएगी। देखिए, in that case they should have done this only to corporates को education देना चाहिए, bankers को education देना चाहिए। The reason being, see ultimately वो लोग हमसे collect करेंगे डेटा, फिर भी ह्यूमन टाइम जाएगा उस डेटा को फिर से वो स्ट्रक्चर वे में डालेगा, क्या मतलब है? मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये सब इन लोगों ने ये गाइडेंस नोट बहुत अच्छी दी है। और अपने क्या होगा, एक एक क्लाइंट एक एक डिटेल, हमारे पास तो थी नहीं, तो हमको कैसे सपना आएगा कि ये इसका अस्तित्व है? मुझे इन सीतारमन ने डायरेक्टली भेजी थी पर्सनली। यही तो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मैं वही बोल रही हूँ कि अभी अपने से जो भी क्लाइंट मांगेगा, एक एक में अपना टाइम जाता है, भैया 226 एस निकाल के दो, देन आईटीआर निकाल के दो। पिंकी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब टू, कितना सिंप्लीफाइड थिंग है उसको हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ, मैंने सबको इसीलिए बोला कि जो जिन्होंने भी मुझे बोला कि डिक्लेरेशन देना है क्या मैडम, ये वो, मैंने सबको ये बोला कि आप मेरे इसमें सेमिनार वेबिनार में आओ, मैं आपको बताती हूँ कि कितना सिंप्लीफाइड है ये। व्हाई मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड लाइक लाइफ। ये जो 206 AB कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया। ओके, और उसके बाद बाकी सारे सेक्शन में से 194C, J, I, 195 सब में मुझे ये देखना है? यस यस यस, सब में देखना है, बट इन केस ऑफ 195 इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अच्छा, क्योंकि रिलैक्सेशन, हाँ नॉन, क्योंकि यदि वो अपने यहाँ पर रिटर्न फाइल करने के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब एप्लीकेबल क्या, उनके वो बाउंड नहीं है कि उनको रिटर्न फाइल करनी है, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई। क्योंकि ठीक है ना, ये वाली स्क्रीन समझ में आ गई ना सबको कि ये कैसे है, किसी का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ, मेरा खाली एक रिक्वेस्ट था, फाइल क्लोज करके वो फाइल पहले तो तू चेक बॉक्स में रख दे, तो ताकि जो पार्टिसिपेंट है आज उनको वो फाइल मिल जाए। हाँ करेक्ट, वो कर देती हूँ मैं। हाँ, और सेशन खत्म होने के बाद पीपीटी को भी वहां पे ही पेस्ट कर देना। मैं एक और चीज दिखा देती हूँ कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो मुझे जो रजिस्ट्रेशन का वो आया था वो कैसा आया था, और बाद में ना लोगों को डिजिटल कैसे करना है वो भी दिखाना है आपको। हाँ देखो, ये जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ना मेरा नाम, तो ऐसे मुझे आया था रजिस्ट्रेशन का कि ये रजिस्टर्ड हुआ है, देन माय नेम, 10 एंटिटी नेम, सॉरी मेरी फॉर्म का नेम, 10 नंबर, पैन नंबर, बिल्डिंग नेम, इस तरह से मुझे रजिस्ट्रेशन आया था कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो और ये प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब मेरा वो एंटिटी का था, इट वाज फॉर ऑफ माय एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज ऑफ माइन। तो ऐसे ये रजिस्ट्रेशन का। I have one question. So ये inside जो inside is the separate portal linked with the IT department portal. Yes. And inside Yes. वो section 61 जब आया था SFT, तभी उन्होंने जब चालू किया था, बट ठीक से फंक्शनलिटी नहीं हो रही थी।
if I'm not mistaken. At that time, Correct, I read correct. this name of Insight. Now Yes. they are making us mandatorily register in Insight. Correct? तो मैंने Correct. पुराने जमाने में तभी किया होगा सेक्शन 61 के टाइम पे, तो क्या फिर से मुझे करना पड़ेगा? दैट इज माय क्वेश्चन. Yes. क्योंकि वो दे आर रीस्ट्रक्चरिंग द डेटा. 10 नंबर you don't have to register. हमें 10 नंबर यदि आपने पहले रजिस्टर्ड किया हुआ मैंने है 10 ना, किया हुआ है. मेरे 10 क्लाइंट जिनको सेक्शन 61 एप्लीकेबल था ना, उनका हमने इनसाइट पे किया था. तभी भी वो, लेकिन जब उसमें आप इनकम टैक्स 10 नंबर के पोर्टल में जाते थे ना, तो सेक्शन 61 में वो हमको राउट करके इनसाइट पे लेके जाता था. हाँ, लेकिन इसमें क्या है, तुम 10 नंबर के थ्रू जाके रजिस्टर्ड कर रहे हो. ओके. वो जो तुम बता रहे हो वो पैन नंबर के थ्रू हाँ, था. पैन नंबर के थ्रू किया था. 10 का कोई अस्तित्व ही नहीं था. हाँ, करेक्ट. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ये जो जा रहे हो आप 10 नंबर के थ्रू जा रहे हो, तो आपको वो कंप्लायंस चेक का वो आ रहा है. हाँ, तो करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ. So this question I'm asking for the participants' clarity. You know, basically all the participants will agree with me. Whatever questions I'm throwing is that so छोटे-छोटे questions. Rest of the thing what I'm saying कि अपने सब CA है, थोड़ा सा R&D करना पड़ता है उसमें विंडोज में कि साइट पे कि कहाँ क्या हो सकता है, तो वो मिल जाता है. थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है. हाँ, एक सारिका मैडम का क्वेश्चन है. If deductee has not filed a return for any previous year, but his TDS deducted by us in previous year is below 50,000, then 206AB is applicable. इसमें TDS का भी क्राइटेरिया है क्या? इतना अमाउंट TDS का काट रहे हो तभी सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन वाला चेकलिस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है. No, there is no threshold ना for, मतलब 5,000 का TDS है या 25 का. मैं क्या बोल रही हूँ Let's go to कि the ये जो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो सेक्शन में जो भी लिखा है, आपको यदि आपने साइट पे, इफ यू हैव टेकन this checklist from site and in that checklist it is written that it is not the specified person, आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. वो सारे क्राइटेरिया हम लोगों ने उसमें चेक कर लिए हैं. 50,000 वाला क्राइटेरिया भी उन्होंने चेक करके ही वो डाल रहे हैं कि whether that person is specified person or not. Okay. अच्छा, the aggregate amount. अच्छा, and है ना? हेलो, यहाँ पर एक मैं क्लेरिफिकेशन, इनका जो क्वेश्चन था ना, शी इज आस्किंग कि 50,000 बाय अस, टीडीएस बाय, ये बाय अस वाला एप्लीकेबल नहीं है. नो बाय अस नहीं है. टीडीएस और टीसीएस बाय एनीबॉडी, बाय एनीबॉडी एक्सीडिंग 50,000. खाली अपना तो समझो हम किसी का 5,000 करते हैं एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, तो पर उसका तो टोटल देखना है, राइट? टोटल, यू हैव टू चेक टोटल. फॉर दैट वी कैन गो थ्रू बाय दिस टेबल. ये टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा. यस, थैंक यू. So for the current year assessment year will be 21-22. So we have, if the person has filed the return from this slide, so करूँ एक सेकेंड, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा ना. चलो, ओके. अभी मुझे चैट नहीं दिख रहे. ओके. हाँ, अभी time is already 6 or 7. और अभी हम वहीं के वहीं हैं. पार्ट 3. It's very interesting. मतलब डाउट्स क्लैरिफाई हो रहा है तो एटलीस्ट काम करने में सुविधा हो जाएगी ना. चले फटाफट. इसमें क्या है, if the person has filed the return for both the previous year and in both the year his TDS or TCS has been deducted more than 50,000, then he is not come under for in the definition of specified person. Okay. Second, मैंने बताया था ना, इन दोनों साल में कोई भी एक साल की भी यदि फाइल की हुई है, then he will not be the specified person. Okay. Even if TDS will be more than 50,000 in each of the assessment year. ओके. जो उसका क्वेश्चन था वो यही था. नहीं, उसका क्वेश्चन क्या था? नहीं है ना, 50,000 का क्राइटेरिया देखना है. सारिका ने जो पूछा था 50,000, सारिका ने क्या पूछा था? हाँ, तो इफ इसने एक साल की रिटर्न फाइल की हुई है, 2019-20 की फाइल की हुई है, तो उसके बाद क्या मेरे को कोई क्राइटेरिया देखना ही नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन वाज दैट कि दोनों साल की उन्होंने रिटर्न फाइल की है और हमने नहीं करिए दोनों साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है, वैसा था.
if deducted is not filed the return for any previous year, but his TDS deducted by us in previous year is also below 50,000, then in that case it is applicable or not. तो ये no नहीं होगा ना, below आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन है ना तेरा Vandana, that is what I am telling. 50,000 deducted by us. ए નથી જોવાનું ને, we have to see that total TDS टोटल देखना है, टोटल 50,000 वाला क्राइटेरिया. यस यस यस. सो सबसे पहले आपको रिटर्न का क्राइटेरिया देखना है. यू हैव टू सी रिटर्न क्राइटेरिया and after that you have to check the 50,000 wala criteria. So in second and third example, he has the person has filed the return for only 1 year. Like in second he is filed for assessment in 1920, and in third example he has filed the return for 2021. So in both the cases he is not the specified person because he has filed the return for 1 year. Okay, both दोनों में से कोई एक साल की रिटर्न उसने फाइल करी हुई है, तो he is not a specified person. So this section will not be applicable to him. In fourth example, उसने दोनों साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है. Okay, but his TDS is deducted more than 50,000 in both the assessment year. Then yes, he is come under the definition of a specified person, and this section will be applicable to him. आपको और एक ना स्लाइड में नीचे एक ऐड कर दे नो यस, मतलब फर्स्ट 2 कॉलम में एक में नो एक में यस, फिर नो इन दैट केस सिनेरियो क्या होगा? द क्वेश्चन इज दैट गुड. हाँ, गुड कर देती हूँ इस पर. एक्चुअली वो उनका क्वेश्चन है जो इस स्लाइड में है ही नहीं, आपको ऐड करना चाहिए क्वेश्चन. क्योंकि तुमने दोनों यस और दोनों नो डाले हैं ना लास्ट वाले में. अभी एक यस एक नो और दोनों नो, इन दैट केस क्या होगा सिनेरियो? मैं तो चारों नो, इनका चारों नो है. चारों नो इनका जो क्वेश्चन है इसमें चारों नो है. हाँ, तो चारों नो वाला और एक पॉइंटर्स डाल दे. हाँ, और एक पॉइंटर ऐसा डाल यस नो नो नो, समझी? तो अपनी स्लाइड थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगी. हाँ, तो सिनेरियो अभी थर्ड तक हम आए, फोर्थ एग्जांपल तक आए कि in case of if he has not filed the return but his TDS has been deducted more than 50,000, he will come under specified person, and 206 AB is applicable. And in last one, he has filed the return for both the assessment year, but his TDS is not more than 50,000. तो ये हमको तो बात देखना ही नहीं है ना, TDS का तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि उसने रिटर्न फाइल करी हुई है ऑलरेडी, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगा. तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि दोनों साल में कोई एक साल की रिटर्न फाइल करी हुई है कि नहीं करी हुई है. यदि नहीं की हुई है, दोनों साल की ही रिटर्न फाइल नहीं करी हुई है, देन यू हैव टू सी द amount of TDS, and if the amount of TDS is also less than 50,000, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, और जो वो दो है ना वो डाल देना स्लाइड में मेरे हिसाब से. हाँ डाल देती है. और देन वी मूव ऑन टू, तो आपने ये कवर कर लिया व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB where the payment to a particular vendor is not crossing the minimum threshold provided under the respective section of chapter 17B. So what should be the relevance of non-obstant clause in this section? Non-obstant clause का मीनिंग ये है कि मैंने कहाँ तक कवर किया? Not anything contained in this section ऐसा करके चालू. NRI भी हो गया ना, NRI का भी हमने कर दिया ना, 206 AB भी कर दिया. नहीं लगेगा बड़ा नहीं. नॉन एब्स्टेंट क्लास के लिए भी इन लोगों ने अभी इसमें सर्कुलर में बताया है, and what they are saying कि it would apply even in those cases where the tax deductee have obtained a nil or lower deduction TDS certificate from the tax officer or has provided a declaration under section 197 of the act. So non-obstant clause means it's overriding all other provision of the act. ओके, तो यदि आपने लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, अभी लोअर डिडक्शन के सर्टिफिकेट में इफ यू हैव टेकन कि इसको 2% की 10% की जगह उसको 2% ही लगना है, बट इन दैट केस आल्सो यू हैव टू चेक दिस कि स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है. इफ ही इज ए स्पेसिफाइड पर्सन देन यू हैव टू चार्ज यू हैव टू डिडक्ट TDS एज पर दिस प्रोविजन की वो ट्वाइस द रेट और 20% और व्हिचएवर इज हायर लाइक दिस. I have a question, Pinky. How on this earth that taxation officer will issue him 197 if he has not filed last 2 years return? Does they give lower deduction certificate? Because there is a अरे वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेता है तो लास्ट 3 साल की रिटर्न लेके ही लेता है.
हाँ, उसके बेसिस के बिना तो होगा ही नहीं, कॉमन सेंस है। आई मीन हाउ ऑन दिस अर्थ पीपल ड्राफ्ट द क्वेश्चंस एंड मेरे तो समाज के बाहर की बातें हैं, क्योंकि मुझे वो ऑफिसर 197 में सर्टिफिकेट तभी देगा जब मेरे लास्ट 2 इयर्स का उसके पास ब्यौरा रहेगा। He knows last 2 year plus current year plus एस्टिमेटेड बताना पड़ता है उसको कि भैया अभी सपोज when we are filing for assessment, we are filing application for assessment year 22-23, then we have to give the ITR for assessment year 19-20, 20-21 and estimated or provisional tax computation of assessment year 21-22 and projected of assessment year 22-23. तो ये 4 साल का तो उसको देना ही पड़ता है ब्योरा, अदरवाइज ही विल नॉट गिव अस द सर्टिफिकेट. So ideally person will not fall under this section, that's what I believe, right? Yes. अभी इसके बाद का कोई क्वेश्चन है तो बता फिर. What would be the applicable rate of TDS when section 206AB is triggered? Very important question. 206AB अभी कभी ट्रिगर होगा वो तो हमें समझ में आ गया. वो मैंने इसमें दिया है कि ये जो रेट है वो रेट इसमें एप्लीकेबल होगी एंड बोथ द सेक्शन इज एप्लीकेबल. जो एक मिनट, जो रेट 206 डबल एंड 206 AB वो तो मुझे समझाओ. क्यों? हाँ मतलब आ तो कितना सेक्शन लाओ सालों को. देखो 206A जो है ना that is for 206AA is for PAN number and for Aadhaar number not provided. Okay. And 206AB is for filing the income tax return. अच्छा मतलब दोनों अलग अलग सिनेरियो है. यस. तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन में ये हो सकता है कि दोनों चीज एप्लीकेबल हो, क्योंकि यदि मैंने पेन अभी आप लेबर चार्जेस वगैरह दे रहे हो या किसी को दे रहे हो उसने पेन नंबर ही नहीं लिया हुआ है. तो पेन नंबर नहीं लिया हुआ तो रिटर्न भी नहीं फाइल किया होगा ना. हाँ तो 20% कट जाएगा. तो दोनों सेक्शन उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे ना. 206A भी हो जाएगा और AB भी हो जाएगा. गवर्नमेंट 20% काट के उस पैसे का करेगी क्या? वो गवर्नमेंट से वो आदमी बेरोजगार है, मतलब उसका लेबर चार्जेस इनकम है, उसकी 5 लाख के ऊपर इनकम ही नहीं है अगले की. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एज अ लेमैन और एज अ कंट्रीमैन, आप उसके 20% काट के ना मुझे मिल रहा है ना वो बेचारा जो काम किया उसको मिल रहा है. गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी? But then he has to just apply for PAN. No, he should take PAN. That's it. उसको और तो कुछ नहीं करना है. वो छोटा आदमी है, आप लॉजिक समझो. वो ब्रेड बटर बेचारा पत्थर तोड़ के कर रहा है. Madam, whatever you are saying is correct. Many persons are not taking PAN number. They are earning in crores and वो ठीक है. But in case of normal person who is earning not more than 5 lakh rupees or 4 lakh rupees and for daily wages like this, so वो लोगों के पास they had no any address proof for this thing whatever required for PAN application. हाँ तो गेहूं के साथ घूम पिस रहा है बेसिकली. आई अंडरस्टैंड. वो वैसा होता है, वो हमेशा वैसा ही होता आया है. तो वी कांट चेंज दिस अभी. और गवर्नमेंट यही इफ यू आर द प्रोविजन कर सकते हैं ना कि अगले की पासबुक में लास्ट ईयर में 5. हाँ पर यहाँ पे हिंदुस्तान में पासबुक के अलावा भी बहुत पैसा आते हैं. चलो एनीवे नॉट गोइंग इनटू लिटिगेशंस. तो एक समझ में आ गया. 206A is applicable when PAN and Aadhaar is not provided. Okay, and 206AB is when you have not filed the IT return though you have the PAN number. Okay, understood. And in that scenario, twice the rate specified in the relevant provision of the Act. So suppose वो legal fees रहेगा तो 20% हो जाएगा. They 10 है तो डबल हो जाएगा. अगर रेंटल इनकम भी है और वो अगला फाइल ही नहीं कर रहा है. पर मुझे ऐसा लगता है आजकल प्रॉपर्टी तो बिना पैन मिलती है क्या, पता नहीं क्या. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. पहले की प्रॉपर्टी रखी है ना सब. हाँ वही उसको 40 पे चढ़ा दिया और चले जा रहा है. अभी 1000 रुपया खाली स्टैम्प ड्यूटी है फॉर रजिस्टरिंग योर लीज द डीड. तो भी लोग अवॉइड करते हैं. आई डोंट नो व्हाट द रीजन. एनीवेज इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से and then we will wrap up. What is the threshold given from a tax deductor standpoint for the applicability of this section? So there is no minimum threshold limit given.
वो compliance अगर तू मुझे पूछती ये सवाल तो मैं ये बोलती Section 194J is applicable if I'm making you payment of 30,000. So that becomes my threshold. As simple as that. Correct? At that time, yeah, as per section, in which section you have to deduct the TDS. That is, if any threshold limit is prescribed in that section, that on that threshold limit is applicable for this. Chalo, so I think we have quite a few interesting. You have anything pending in your slide? Okay, that's a thank you coming from you. So first of all, पहले तो आप slide PPT डाल दीजिए और वो file inside वाली डाल दीजिए हमारे Zoom chat में. So before people disperse. Okay. You can unmute Sefali and then clap. मैंने unmute कर दिया है. तो तेरी ताली का आवाज भी नहीं आ रहा था मुझे. नहीं आवाज आया मुझे सुनाई दिया. अभी आया ना. Julie and everyone present here will definitely understand it was awesome. And before we disperse वो digital बता दे मेरी माँ site पे जाके. तो ये video live है. This is live on Facebook. I can share the Facebook link also with all the participants. पहले मैं वो कर दूँ ना फाइल को डालने दे मुझे. मैं chat box पे डाल रही हूँ Facebook link. They can copy and paste in their WhatsApp. We are live on Facebook. And thank you everyone who came with their busy schedule to understand the nuances. I think all 194Q. Do not. सबको मिल गई ना वो फाइल? Yes, yes. हमें फाइल दिखा रही है, हम उसको क्लिक टू डाउनलोड कर रहे हैं. स्टॉप शेयरिंग करूं? और इसके बाद हम SGF में उसको 5 जुलाई में छोड़ रहे हैं. Nilam also came, my good friend. I like it. Shefali तो हमेशा हमारे साथ रहती है. क्या हुआ? Daman bhai, it's now time to give out of thanks, but before that, ask Pinky कि सबका एक mood question है, सब लोग का WhatsApp पे घूम रहा है डिजिटल सिग्नेचर को कैसे फिर से नई साइट पे इनकम टैक्स की नई साइट पे फिर से हमें कैसे रजिस्टर करनी है. क्या आप हमें लाइव दिखा पाएंगे शेयर स्क्रीन के साथ? 2-4 मिनट ही लगेंगे. खाली जगह बता दीजिए कहाँ जाना है हमें. वो ना गवर्नमेंट ने बोला है. हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है कि सीधे कान नहीं पकड़ना है, ऐसे घुमा के कान पकड़ना है. बस वो चीज है इसमें. आप शेयर स्क्रीन करो और हमें साइड पे लेके जाओ. करती हूँ. जूली को तो थैंक यू बोलना पड़ेगा. जूली वाज नॉट कीपिंग वेल ऑन द सैटरडे. टुडे हाउ आर यू फीलिंग डियर? बेटर नाउ. नहीं, अभी मेरे को उसकी शक्ल ठीक नहीं लग रही है. नहीं, वो बेचारी दवा खा के बैठी थी. एंड आई अप्रिशिएट हर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन. यार देख, अभी डीएससी के लिए क्या करेंगे, पहले पैन नंबर पे जाते हैं. हाँ मैडम. अरे यार क्या हुआ? ओ शिट. बहुत कंटाला आता है, ये गोल गोल घूमता है ना तो बहुत कंटाला आता है. इनफैक्ट जूली, टू मेंशन विद यू, पिंकी एंड आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड एट दैट टाइम कि 194Q और 206 जल्दी हो जाएगा तो हम उसी दिन इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में बताने वाले थे. वी वर हैड ये इतना स्लो चलेगा तो कैसे बताएंगे? नहीं, वी हैड अ हाई ऑप्स ऑन दैट डे. इफ यू रिकलेक्ट, हमने सोचा था आधे घंटे में हो जाएगा 194Q 206 1H and we will showcase certain moot points, pain points of the this side, you know, new side rather. But एक इनपुट दूं वंदना. बोलो ना. आप आज है ना शायद अपना टाइम है ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इमीडिएट नेक्स्ट डे के उसमें सेशन हुआ अपना, तो हम लोग है ना शायद इंट्रोडक्शन पार्ट जो था ना उसको अभी लाइव है. यू की लाइव है. वी आर लाइव ऑन फेसबुक. अभी इसमें जब अपने जाते हैं, ये अपने लॉगिन हो गया. यू हैव टू गो टू माय प्रोफाइल. ओके. Yes. उन लोगों ने what they had, it is still live, no? Yeah. तो उन लोगों ने क्या बताया है कि when you will go to profile, then you will get the
ऑप्शन हियर, हाई वोल्टेज सिक्योरिटी में जाना है ना? यस, हाँ, नहीं अभी मैंने ई फाइलिंग में नहीं गई, मैं नॉर्मल माई प्रोफाइल में गई। माई प्रोफाइल में गई तो व्हाट दे टोल्ड अस कि ये ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी के नीचे देयर इज ऑप्शन टू रजिस्टर डीएससी, बट वी आर नॉट फाइंडिंग हियर कि कोई रजिस्टर करने का डीएससी का यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। देन R&D करते करते निकाला कि यहाँ जाने का, देन इधर टिक मारने का, ठीक है। जैसे ही उधर जाते हो ना, यहाँ पे आपका आता है कि ये मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है उसमें, ओके। तो मैंने यहाँ पर डीएससी लगाई हुई है, इसके लिए मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा। अदरवाइज यदि मैं इसमें से दोनों में से कोई भी वो करती हूँ ना, तो मुझे वो बोलेगा कि यहाँ पर आप डीएससी अटैच करो, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर डीएससी करके एक वो आ जाएगा। आपकी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, यानी मैं मेरा ट्राई करके बताऊं क्या? आई कैन मेरा नहीं किया है, आई कैन ट्राई विद माय। अरे माने प्लीज, हाँ वो भी जरूरी है ना, सब कुछ समझ में आए पब्लिक को। ये लो माने, फटाफट लगाओ नीचे। हमें जाना पड़ेगा। अरे पहले रजिस्टर तुम ऐसे ही जाना तो उनको पता चल जाएगा ना, डीएससी बाद में रजिस्टर करना। डेस्कटॉप शेयर कर, तो जाऊं तेरी स्क्रीन शेयर कर। हाँ अच्छा सुन, अभी सब लोग को दिख रहा है मेरी स्क्रीन? यस 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 यस। ओके, सो हियर वी विल गो टू इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। इसकी जगह पे अभी खाली इनकम टैक्स india.gov.in करना है, राइट? यस। इसको नो कर देते हैं। ओके, देन आई हैव टू गो टू से लॉगिन कहां पर है, किस दिशा में? मैडम तो दूसरे कोई साइट पे पहुंच गई हो। इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट रेस्टलेस क्या क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ। हाँ उसमें जाना, उसमें जाना पोर्टल पे। नहीं एक मिनट, उधर से मिल रहा है। मैं वही देख रही हूँ, इंडिविजुअल है, लॉगिन कहाँ पे? तो मतलब हम यहाँ पे देखो, एम्प्लॉइज लॉगिन, स्किप टू मेन कंटेंट, क्या क्या है? मतलब कोई मानस एंडन जाए तो भी कंफ्यूज થઈ जाए। Am I on the right side? Anyone? Yes yes। तो अब क्या करना है मुझे? एक मिनट, ITR1 पे क्लिक करना, तू ITR1 पे क्लिक करना। कहाँ है मुझे? रिटर्न फॉर्म्स में, रिटर्न फॉर्म्स में। अरे गो टू इनकम टैक्स इंडिया लिखा है, incometax.gov.in। You have to write income tax India हटा, you are on the wrong side। incometax.gov.in, India will not be there। हाँ गलत साइड पे है, देखो। Yes। incometax.gov.in। और ये उनको सैल्यूटेशन चाहिए ना, उसके लिए तो ये पूरा साइट रीस्ट्रक्चर किया है, डोमेन नेम चेंज किया उन्होंने, पता है? गो टू लॉगिन, फटाफट कर। हाँ गो टू लॉगिन, हम डालते जाएंगे बेटा। गो टू लॉगिन। अच्छा मैंने दबाया है, तो साइट धीरे धीरे चल रही है। मैं आई हैव ऑलरेडी क्लिक्ड वंस, यू नो। यहाँ पे लिख के आता है वेटिंग फॉर चेकपॉइंट। या पुट योर पेन नंबर, कंटिन्यू, प्लीज कंफर्म योर, यस, पहले उसको टिक मार्क कर ऊपर। यस, नाउ पुट पासवर्ड। यस, देन कंटिन्यू। ओके अभी इसको नेवर कर। अभी प्रोफाइल में जाओ, ऊपर बंदा डोडिया जहाँ लिखा है, उसको क्लिक करो, माय प्रोफाइल। यस, खुलने दे, इट विल टेक टाइम टू ओपन। इतना टाइम लेगा तो कैसे चलेगा? वो इतना टाइम लेता है। ये देखो खुला। अभी देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड डीएससी तुमको दिख रहा है। पर्सनल में जाते हैं ना तो रजिस्टर्ड डीएससी दिखता है। अच्छा, गो टू दैट डीएससी। मेरे पास फॉर्म भी है, मैं फॉर्म में भी रजिस्टर कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ आगे का बताती हूँ। ये आपको ना एक एम्बेडेड का वो फिर से एम साइनर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके सो व्हेन यू विल सी हियर, नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एम साइनर यूटिलिटी एंड इंस्ट्रक्शन इज आल्सो देयर। तो व्हेन यू विल डाउनलोड दिस, वो अपने आपके सिस्टम में चल जाएगा आराम से। एंड
उसको आपको रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। अभी देखोगे ना वहां पर, जब डेस्कटॉप पे देखोगे ना, एक वो प्लग से प्लग जोड़ता है ना, वैसा लोगो आएगा। डेस्कटॉप पे जाओ, देखो ये देखो आया ना, ये लोगो आता है नया एम साइनर का। ठीक है, अब ये क्या अपडेट रिफ्रेश क्या होता है? अपडेट कर ले, अपडेट कर। यस, मतलब उन्होंने ई मुद्रा के साथ टाइप किया है। यस यस यस। और हमारा सब कहाँ से आता है? ई मुद्रा से आता है। अभी जाओ उस साइट पे जाओ, इनकम टैक्स की साइट पे जाओ। अभी एक बार इसको कैंसिल कर, पहले इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल को करना। सॉरी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। यस, हो गया। मतलब जो दो अलग अलग किया हुआ ही था, ऑलरेडी किया हुआ ही था, कोई नहीं, चल ठीक है। समझ में नहीं आया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। छोड़, यस, रिफ्रेश एंड क्रॉस करो, ऊपर से क्रॉस कर दो। सो बेसिक अभी अब जाओगे ना, देखो यहाँ पे आएगा आपको। अभी रुक जा 1 मिनट, 1 सेकंड टाइम लगता है। हाँ देखो आया ना, तो उससे पास अभी रुको, अभी फिर रुको, सर्टिफिकेट पे जाओ। नहीं ये नहीं, हाँ अभी आओ, प्रोवाइडर पासवर्ड। प्रोवाइडर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देगा ना। हाँ, टोकन यूजर पिन हैज टू बी चेंज। ये क्या होता है? ये जबरदस्ती क्यों चेंज करवा रहा है मेरे से? हर चीज में वो लोग जबरदस्ती करेंगे, कैसे चलेगा? नहीं तुमने गलत डाला हुआ होगा। ए बेटा वो डिजिटल देखो ना, फिर से ना डालो, हटा के फिर से डालो। गलत पासवर्ड डाला होगा इसके। कार्बन का निकालो, निकाला मैडम। हाँ डालो। अभी इसका हो गया ना, अभी कोई कंपनी का खोल के देख ले, कंपनी में कैसे करना है वो बता देते हैं। हाँ बाड़ा, एक सेकंड। लेकिन ये मुसीबत क्या है, ये मुझे समझा नहीं। देखो मुझे सीखना है। देखो वंदना लिख के आ गया ना, मेरी डिजिटल आ गई। ओके, you have to change your PIN first. टोकन यूजर पिन हैज टू बी चेंज क्या होता है? मतलब ये हो नहीं रहा है, मैं वो चेंज करना है, बाद में पासवर्ड डालना है। ये फिर से सेलेक्ट कर, प्रोवाइडर को फिर से सेलेक्ट कर। एक मिनट, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल कर। यस, कंटिन्यू। फिर से सेलेक्ट करो प्रोवाइडर। हाँ उसको, हाँ ई पास। रुको 1 सेकेंड, सर्टिफिकेट में रुको। हाँ 2 सेकेंड, हाँ भी करो। नंबर क्यों आता है यहाँ पे? वो नंबर ही दे रहा है, पता नहीं वो नंबर क्यों दे रहा है? आदमी का नाम देना चाहिए ना। नहीं दे रहे, आदमी का नाम नहीं दे रहे वो लोग। चलो क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ से कुछ मिले इंफॉर्मेशन? कहाँ से उठा रहा है वो नंबर? कहाँ से उठा रहा है वो? एनीवेज दैट्स नॉट आवर क्राइटेरिया। तो मैं एक बार इसको ऐसे ले लूं, फिर पासवर्ड तो वही होगा जो हम लोग डालते हैं। डालो। हाँ। अरे हेलो, बात बताओ, यूटिलिटी चालू पासवर्ड चेंज करना पड़ता है DSC का, फिर डालना पड़ता है पासवर्ड में। चेंज योर पिन फर्स्ट, यू टू चेंज योर पिन एंड देन यू टू। तो ये ई मुद्रा का ये जो तूने मुझे डाउनलोड कराया, वो चला या नहीं चला? वो खाली रनिंग लिख के आ रहा है। वो चल रहा है, तू कंपनी में जा तो पता चलेगा। Okay, fine. So in that case, I will go to my Winman only, at my rescue. Winman CAERP. क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं, ये सब हम जाते नहीं, वो सब करने को कैसे करेंगे? कंपनी का चाहिए आपने। नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। हाँ बट वो बोल रहा है ना कि रजिस्टर्ड डीसी फीचर्स है वो ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनी स्टेटस इन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। ओके,
मतलब फॉर्म के लिए नहीं हुआ है, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अब वो ठीक है, लॉगिन टू इनकम टैक्स वेबसाइट तो कर ही सकती हूँ ना मैं यहाँ से। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से तुझे भी नहीं दिखेगा। हाँ मतलब अगर उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया जाए, कंपनी का डालना था ना, कंपनी का मैडम, कंपनी का मेरे पास डीएससी किसी का नहीं है, प्राइवेट में। अरे डीएससी नहीं करना, खाली क्या कहाँ से जाना है, खाली उतना देखना है। अरे हाँ बड़ा ट्राई कर सकते थे, तुमने जैसे बोला वैसे। ये देखो, ये एक विनमेन का मुझे फायदा होता है, अंदर लेके चला गया। अभी तूने बोला था पहले प्रोफाइल में जाओ, एंड देन वंस यू गो टू प्रोफाइल, सिक्योर एक्सेस में देखो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। पे जाना है, ये नीचे जाओ, नीचे जाओ, यूजिंग डीएससी डिजिटल सर्टिफिकेट पे जाना। ये यहाँ मत डाल, यहाँ मत डालो, लॉगिन के टाइम। हाँ अभी देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड डीएससी दिख रहा है ना। हाँ अभी आ रहा है ना, यही तो लोगों को बताना था आपने। बस यही, इधर जाओ, ओके करो। अभी देखो ये स्क्रीन आ गई ना, जो तेरे पर्सनल में करने के टाइम में जो स्क्रीन आ रही थी, वो स्क्रीन आ गई। कंटिन्यू कर, यहाँ कंटिन्यू करो। अगेन यहाँ पे जाओ, प्रोवाइडर में ई पास, हाँ लोड दिस वन, वही डालो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तेरे पिन में कुछ गड़बड़ी है, अदरवाइज इन माय पिन। अरे वो फोर्स कर रहा है तो चेंज कर देता हूँ ना, 9 डाल दूं क्या पीछे? करूँ क्या चेंज यूजर पिन? कर दो, बट इन माय केस इट हैज नॉट आस्क्ड एनी टाइम फॉर टू चेंज द पिन। तो तेरे उधर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है शायद यूजर पिन की, बट द प्रोसेस इज दिस ओनली कि इस ढंग से आप यू कैन रजिस्टर योर दिस थिंग। अल्टीमेटली एक मिनट, उनका क्वेरी क्या था कि कहाँ से जाके मिलता है? आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। ओके मैं 9 डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ओके, changing click succeeded. Okay, now let's go and put 9 here and then see साइन करने को दे रहा है क्या। मुझे तो उनको दिखाना था ना कैसे रजिस्टर हो रहा है। वाओ, so we have done it. Okay, that's fantastic. तो मतलब वो उस मैसेज का भी कोई मतलब नहीं था कि फॉर्म का नहीं हुआ है। सी हमने लाइव अभी फॉर्म का रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर कैसे हो सकता है वो प्रोसेस समझा। थैंक यू वेरी मच पिंकी। It was from profile. One has to go to profile and then do the needful. Okay, e-filing. वही बोल रही ना, उसने सीधे कान नहीं पकड़वा रहा है, ये ऐसे घुमा के बोल रहा है कान पकड़ो। ठीक है? Okay, dear. So now it is time for a well-deserved vote of thanks. Daman bhai, you are anxiously waiting. Please. Now you can use तेरी शेयर स्क्रीन हटा पहले। हाँ बस बंद करता हूँ ना, और ऑनोटेशन बंद नहीं हो गया ना। थैंक यू वंदा मैडम। अरे मैंने वो क्या कर दिया मालूम है, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या दबाया था। पिंकी, इट वाज वेरी नाइस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस मेन मोटिव हम लोगों का वही था कि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए। एंड बहुत क्लैरिटी आ गया, बहुत ही क्लैरिटी। यू कैन सेव योर टाइम because we are investing our time only. Yes, that's right. Thank you so much. Time is money for us professional. जवाब मिली। For we professional, money time is money only. So so how we can save our time and we can educate our client to save our time. So now it's time to have heartily vote of thanks to Pinky madam, right? Vanda madam. Yes, sir. So you all agree, participants, Vanda madam, Julie madam, Rutika madam, Sefali, और all अपना जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, right? Only agree with that कि whatever the C has made PPT as well as the उनका पर्सनल जो टच था जिसको बताने के लिए, it was very easy and lucid. So we can understand easily
हाउ टू, बिकॉज इतना भारी भरकम सब्जेक्ट लिया था और मेरे लिए तो सही में आप सबके लिए होगा कि 2 सेक्शन का जो मिक्सिंग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे. सो यू मेड इट वेरी इजी एंड सो it is very beneficial to us in next coming days. So on behalf of SGF, I'll say everybody to have round of applause to Pinky madam and very thankful. आपका 3rd जुलाई का जो सेशन था, it was very beautiful and उसका जो behalf में रह गया था आधा, then completing here because 206 194 Q section mixing सेक 206A 206AB और ये क्या बोलते हैं उसका परचेस का सेल्स का कॉम्बिनेशन किसको क्या लेने का है देने का है और एवरीथिंग यू मेड इट वेरी इन प्रॉपर एंड ल्यूसिड मैनर. सो आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ SGF and all participants. Next section is on 10th of July, accounting standards applicable to MSME from 1st of April 21. Mark my words, this is also very important. Half of the MSME don't know which standard has started applicable to them. Yes. So Kavita Loya is coming. Saturday at 4 o'clock we will be keeping the meeting for the pre-meeting. And This now wants to say something, but I will take it offline. Sefal, if you don't mind, my Facebook. No, just 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. In continuation with what Daman sir told, that Pinky has explained it very nicely. So I am looking forward for few more additional songs from you and Vandana on the group because your time is saved in understanding this section. वो तो चलता रहेगा. जूली है ना, जूली सिंगर है हमारी. हाँ, जूली also सब मतलब सब सिंगर्स के साइड से बहुत ज्यादा सॉन्ग्स आएंगे. पिंकी, थैंक्स टू यू फॉर दैट. Thank you. हाँ, appreciate CAD में उन्होंने जो एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वीडियो क्लिप was very interesting and inspiring also. कि other than CA, we are doing extracurricular activities, helping to society or nurturing your own hobbies. That is all important. That is what ultimately we have to become good human being. That's what we have to pass on. Vanda, I want to tell you कि we had crossed 1,200 viewers on YouTube channel for that video. Congrats. Phenomenal. You were also part of that. Don't worry. I'll start one line. You can join with it. हाँ, बोलो ना. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाली दिल आके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां रंगीन बनाएंगे. It means all we go together, तो ये 7 रंगी मिलने वाले हैं. तो wonderful song, wonderful movie. Thank you. Thank you. चलो, okay. Okay, thank you. For the day. Thank you, madam. Yes. Bye everyone and see you. Madam, thank you. Bye everyone. Bye. Yeah, Saturday.